Hello student, welcome to the B.Ed second year classes. Today we will discuss regarding the CGPA, which is the cumulative grade point average, and this topic is under the subject assessment for learning. Before starting the CGPA, we have to go in detail regarding how CGPA is introduced in our country. In our country, mainly the examination results are given in the form of percentage, like first division and percentage and division, like first, second, third, or fail, to on the basis of the persons or students obtain marks. But the difficulty level arises when there is a difference in the state, when there is a difference in the criteria of providing the first percentage or second percentage and the percentage of the marks. Suppose in some places the first division is 60% and some other places first division is 75%, and in case of the second division 45% is considered as the second place, but in other places 50% is considered as a second place. So it's really very difficult to calculate, um, and so it is very difficult to calculate how to provide the percentage in a uniform form or in a uniform manner. So to eradicate this problem in our country, the Mudaliar in 1952 to 1953 introduced the grade system, and after that Kothari Commission also supported, which claims in existence in the 1964. He also supported the graded system, and after that NCERT and UGC also support, and then it is adopted in a national education policy in 1986 too. Now in the system, what is necessary? We in the system, the grades like A, B, C, D, E are provided in the forms of the letter, and grades in the form of the digits like 1 to 9, and in the form of words like outstanding, very good, good, average, satisfactory. All these kinds of things are assigned. So they are categorized on the basis of their letters, numbers, and words. So cumulative grade point average, in this type examinee are awarded the average grade point of the grades obtained in different subject. अब क्या होता है कि CGPA क्या है, ये एवरेज ग्रेड पॉइंट है, जो भी ग्रेड्स हमने अलग अलग सब्जेक्ट्स में लिए हैं उनकी एवरेज निकाल के हम क्या करते हैं, CGPA निकालते हैं. सो इट इज़ एन एवरेज. क्या हो जाएगा, ये एक तरह का एवरेज ग्रेड पॉइंट ऑब्टेन इन द डिफरेंट सब्जेक्ट्स. Grades are allotted like ABCD or in the form of the numbers like 1 to 9 or in the form of the letters like outstanding, good, very good, poor, like this. It is given at the completion of the course. This is the most important thing, is that CGPA is only given at the completion of the course, and in this additional subject are not included. यहाँ पे क्या होता है, मेन सब्जेक्ट को जो है हम इंक्लूड करते हैं. Now as we see in this example, there are different subjects like Hindi, English, Math, Science, Social Science. ये डिफरेंट सब्जेक्ट है. इसमें हमने क्या करा, ग्रेड्स को लेटर की फॉर्म में दिया, ए बी बी. अगर हम ग्रेड को न्यूमेरिकल फॉर्म में, नंबर फॉर्म में देखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, अगर ए ग्रेड आई है किसी के तो उसको 5 मार्क्स अलॉट हुए, बी आई है तो 4, ए आई है तो 5, देन बी आई है तो 4. इसी तरह से हम क्या करते हैं कि नंबर फॉर्म में देते हैं, और इन नंबर्स को जब हम पूरी तरह से टोटल ग्रेड्स के नंबर्स को ऐड करने के बाद क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट थे, 5 सब्जेक्ट थे, तो 5 से हम यहाँ डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, CGPA आ जाएगा. अब ये जो हमारा क्या करा,
क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज आ गया। इस क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज को अगर हमें परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, परसेंटेज में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको 9.5 से मल्टीप्लाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ एक एग्जांपल दे रखा है कि 5 डिफरेंट सब्जेक्ट से, जिसमें 8, 9, 7, 6, 8 ये नंबर आए, तो टोटल इनका 38 आया। जब 38 को हमने क्या करा, 5 से डिवाइड करा, तो ये हमारे पास ये क्या हो गया, हमारा CGPA आ गया। अब इस CGPA को जो है हमें क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज निकालनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो है ग्रेड लेंगे और उससे हम क्या करेंगे, ये सपोज हिंदी का हमने क्या करा, हिंदी का हमने क्या कर दिया, परसेंटेज निकाल ली। इसी तरह हम क्या कर रहे हैं, मैथ्स की परसेंटेज निकाल सकते हैं, मैथ्स का ग्रेड पर मल्टीप्लाइड करके। अगर हम ओवरऑल परसेंटेज की बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, ये जो 9.5 CGPA है उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड कर देंगे 7.6 जो टोटल ग्रेड आए हैं, एवरेज ग्रेड जो आए हैं उनसे। तो कितना हो जाएगा हमारा, एक टोटल परसेंटेज निकल आया हमारा। Now, what are the merits of the CGPA? CGPA is more reliable because few numbers need to be assigned। इसमें क्या होता है, सिर्फ है ना, हमें ग्रेड, छोटे छोटे ग्रेड्स नंबर असाइन करने पड़ते हैं, जो कि 5, 6, 9 पॉइंट्स तक के सिस्टम होते हैं। और इट इज़ हेल्पफुल इन नोइंग द अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। अब इसमें हमें क्या होता है, स्टूडेंट्स के अचीवमेंट का ईजिली पता चल जाता है, कंपैरिजन में ईजी हो जाता है। जब डिफरेंट बच्चों के जो है एग्जाम हमें कंपेयर करना, देन इट इरेडिकेट्स डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द सब्जेक्ट। अभी क्या कर रहा है, किसी भी सब्जेक्ट की डिफ़िकल्टी लेवल्स को जो है हटा रहा है। और ये क्या कर रहा है, एक यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड कर रहा है स्टेट्स के अंदर, जहाँ पे क्या हो रहा था कि कहीं पे 60% पर फर्स्ट डिवीज़न ग्रेड दे रहे थे, कहीं पे 75% को फर्स्ट डिवीज़न मानते। तो वो सिस्टम को वो जो डीमेरिट्स थे उनको यहाँ पे रिमूव कर दिया जा रहा है। अब क्या हो रहा है कि पर्टिकुलर बच्चे का जो पर्टिकुलर ग्रेड है उसके बेसिस पर उसको जो है ग्रेडेड मिल रही है और वो स्कोर ले रहा है। देन इसमें क्या होता है, मेनली क्या होता है, सेकेंडरी बोर्ड्स के अंदर जो है हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा जो है यूज़ होता है। नाउ डीमेरिट्स, ऑल स्कॉलर्स आर नॉट इन अ फेवर। स्कॉलर्स जो थे इसके फेवर में नहीं थे। फेवर में इसलिए नहीं थे क्योंकि अगर थोड़ा सा भी ग्रेड्स के अंदर चेंज हो जाता है तो क्या होगा, उसके जो लेटर्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। सपोज़ अगर किसी बच्चे का A ग्रेड आया है तो उसको 8 मार्क्स मिल रहे हैं, और अगर उसको 5, अगर उसका थोड़ा सा भी प्लेस चेंज हुआ या उसके ग्रेड में थोड़ा सा भी डिफरेंस आया तो उसका क्या होगा, A से B होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो इसमें क्या हो रहा है कि बच्चे की जो एक्चुअल परसेंटेज है वो शो नहीं हो रही, सिर्फ उसको ग्रेडिंग सिस्टम कर दिया गया है। तो जो स्कॉलर्स हैं उनके लिए ये फेवर में नहीं आता। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंपेयर द ग्रेड्स अवॉर्डेड अंडर द डिफरेंट स्केल्स। यहाँ पे कंपेयर करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर हम ग्रेड्स का कंपैरिजन देखें तो इट इज़ वेरी सेंसिटिव। अब हम यहाँ देखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। 60 जो नॉर्मल परसेंटेज का देखते हैं तो इसमें क्या होता है, 60 और 70% अगर हम 100 में से ले रहे हैं तो वो ईजिली इतना जो है इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखेगी। लेकिन अगर एक प्लेस की जगह B प्लेस मिल जाए किसी बच्चे को तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। इट्स टू सेंसिटिव, इट इज़ टू सब्जेक्टिव, सॉरी, तो ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव हुई है। अवॉर्डिंग ग्रेड्स ऑन द बेसिस ऑफ द परसेंटाइल। अब यहाँ परसेंटाइल के बेसिस पर अगर ग्रेड्स देने पड़ जाएँ तो ये जो है सूटेबल नहीं है। So all these are the demerits of the CGPA. I hope you like my video. If you like my video, please like, share and comment in my comment box and subscribe to my YouTube channel. Thank you.